Hello everyone, I welcome you all in the next video lecture on topic number system. So if you try to recall, in last lecture, in fact in the last two lectures, we have discussed these outlines. We started with classification of numbers on the basis of number system tree. Then we have seen the classification on the basis of divisibility by 2. And at last we saw how we can further classify numbers on the basis of number of factors. And then eventually we saw properties of prime numbers. So after discussing these four important points, it is now time to discuss another important point. So today we are going to learn how to find out number of factors, even factors, and odd factors. So before I tell you how you can find out number of factors, even factors, and odd factors optimally, let me pick an example. Let's say I want to find out factors for this number 24. Okay, in order to write down factors or in order to find the number of factors of 24, I have to first make a list. And to maintain this list, I'm going to share an approach. It's going to be manual in nature, but it is an elegant approach. So please listen to me carefully. तो अगर मुझे 24 के फैक्टर्स लिखने हैं तो जो पहला स्टेप है इस अप्रोच का वो ये बोलता है आई हैव टू फर्स्ट टेक स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. तो अगर तुम 24 को देखोगे तो 24 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो व्हाट विल डू इन दिस केस, विल थिंक अबाउट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is close to 24. So you would say, sir, perfect square number is 25. 25 is closest to 24. We'll find square root of 25. 25 square root is 5. And this 5 will be called as the upper limit. Don't worry, I'll tell you what is the use of the upper limit. But let us now maintain the list of numbers which can divide 24. I hope you can recall what are factors. Factors are number which can divide a given number completely. तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. तो ऑब्वियसली ये लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, स्मॉलेस्ट नंबर 1, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है. देन आई विल गो इन दिस सीक्वेंस. क्या 2 डिवाइड करता है? यस. कैन 3 डिवाइड 24? यस. कैन 4 डिवाइड 24? यस. कैन 5 डिवाइड 24? द आंसर इज नो, एंड देयरफॉर आई विल नॉट राइट 5 इन दिस लिस्ट. एंड सिंस 5 was the upper limit, it means now I'm going to switch. After writing the factors in the left hand side, it is very easy to write factors in the right hand side now. So if I ask you कि मैं 1 पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 आए, you would say 24. So 24 is another factor. 2 पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, you would say 12. 3 पे क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 आए, 8. What to multiply in 4 to get 24, you would say 6. So after writing factors in the left hand side, it is very easy to write factors in right hand side. All you need to do is you have to just see the relation. 1 पे क्या मल्टीप्लाई करेगी 24 आए, 2 पे क्या मल्टीप्लाई करेगी 24 आए, all these things. And now if you go back, what was 5 here? 5 was the upper limit. Upper limit of what? That what are the numbers or what is the limit of numbers which I'm going to check while writing factors in the left hand side. मैं लेफ्ट हैंड साइड में कहां तक चेक करूंगा? मुझे नंबर्स तो लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन मुझे कब समझ में आएगा कि मुझे स्विच करना है? जब मैं अपनी अपर लिमिट पे पहुंच जाऊं. तो मैंने 5 को भी चेक किया, क्या 5 24 को डिवाइड करता है? देखो अगर कर रहा होता आई वुड हैव रिटन 5, लेकिन क्योंकि नहीं किया, इट मींस आई हैव अंडरस्टूड. नाउ इट इज टाइम टू स्विच. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. और इन पेयर ऑफ वैल्यूज को मैं जब भी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वही नंबर आ जाता है. यू कैन क्रॉस वेरीफाई. 1 एंड 24 को मल्टीप्लाई करके 24 आया, 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके 24 आया, 2 एंड 12 को मल्टीप्लाई करके 24, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके 24 आया. आई होप दिस मच इज क्लियर. लेट मी पिक अनदर एग्जाम्पल, समथिंग else which I want you to understand. So if I pick a different example, let's say 36. So to maintain the list of factors, you have to first take square root of 36. Since this time 36 is a perfect square number, so I'll directly say, okay, 6 is going to be the upper limit. So in order to maintain the table, I'll start from 1 because 1 is the smallest factor of any number. 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2. क्या 2 डिवाइड करता है? यस. क्या 3 डिवाइड करता है 36 को? यस. क्या 4 डिवाइड करता है? यस. व्हाट अबाउट 5? 5 कैन ऑल्सो डिवाइड, सॉरी 5 कैन नॉट डिवाइड,
so 5 cannot be the part of list. And the last number which I'm going to write in the left hand side is 6, because 6 is the upper limit. So I'll write 6 because 6 can divide 36 completely. Now to write down factors in the other side, all you need to do is you have to check this relation कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 36 आ जाए. You would say sir 36. 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 18, 3 को 12, 4 को 9 and 6 को 6. So this is how you'll be able to find out factors for 36. But there's something interesting which I want you to note down. If you look at the factors of 36, you look at this list carefully, you realize that one of the factors, not one of the factor, yeah, one of the factor is repeating. You realize that 6 का repetition हो रहा है. तो मैं 6 को 2 बार तो काउंट नहीं करूंगा, मुझे तो 36 के डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स लिखने थे. अब मैं 6 को 2 बार काउंट नहीं करूंगा, इसलिए मुझे एक फैक्टर को हटाना पड़ेगा जो रिपीट कर रहा है. तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा, लेट मी गो बैक टू दिस नंबर फर्स्ट, 24, कि 24 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? यू विल से सर दीज आर 8 इन नंबर. लाइकवाइज इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन इन केस ऑफ 36 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं? तुम बोलोगे सर 5 इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ओनली 4 इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लास्ट पेयर कंप्लीट नहीं हुआ. तो यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स का आंसर क्या आया? 9. What interesting I want you to note down is a very important takeaway for you. जब भी हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जब भी हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स का आंसर देखेंगे तो वो हमेशा इवन ही आएगा. ठीक है, कैसे नंबर्स आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, हमेशा इवन नंबर आएगा. क्यों? क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के केस में तुमको लास्ट पेयर ऑफ नंबर्स में, लास्ट पेयर ऑफ फैक्टर में कभी रेपिटेशन नहीं दिखेगा. बट द सेम वुड बी ट्रू इन केस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तुम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पिक करोगे, फॉर दैट मैटर पिक 64, तो 64 का जो लास्ट पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? 8 इंटू 8. अब मैं 2 बार तो 8 को काउंट नहीं करूंगा, इसीलिए हमने क्या ऑब्जर्व किया कि परफेक्ट स्क्वायर के केस में अगर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो नंबर ऑफ फैक्टर का आंसर का नेचर हमेशा ऑड होगा, आंसर हमेशा ऑड टाइप का आएगा. आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टूड. ओके, so after understanding this, after understanding what we are trying to calculate here, we are trying to find number of factors, and the approach which I have discussed with you, it's a manual approach. But the problem with this approach is, although it's an elegant approach, the problem is if I get a bigger value, 1500, 2400, 1600, maintaining the list of numbers and then counting them manually would be a tasking job. And therefore, we need to learn a new approach. So now we are going to discuss कि कैसे हम same number, so I'm picking the same value, मैं बड़े numbers पे भी करके दिखाऊंगा, but let me pick the same number 24 to find out number of factors. और फिर हम बाकी चीजें भी सीखेंगे कि number of even factors and odd factors कैसे कैलकुलेट करते हैं. पहले हम ये सीखते हैं कि 24 के number of factors हम दूसरी अप्रोच से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. So in the other approach, the first step is you have to write the number in canonical form. So if you are getting confused, what is canonical form? Let me show it to you. तो अगर मुझे 24 को canonical form में लिखना है तो मुझे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. एंड द मोमेंट आई से प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब तुमको इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना है. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, so I'll start from 2. क्या 2 24 को डिवाइड करता है? Yes, 12 टाइम्स. क्या 2 12 को डिवाइड करता है? Yes, 6 टाइम्स. क्या 2 6 को डिवाइड करता है? Yes. क्या 3 3 को डिवाइड करता है? Yes, 1 टाइम. और जैसे ही बनाएगा आई हैव टू स्टॉप. तो अगर तुम देखोगे कि 2 कितने बार आया, यू विल से सर 2 का रेपिटेशन था 3 टाइम्स, so 2 to the power 3 and 3 to the power 1. So representing number as a power of its prime components is called as writing number in canonical form. ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? जब भी मैं किसी नंबर को उसके प्राइम कंपोनेंट्स के पावर के फॉर्म में लिखता हूं तो उस फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म बोला जाता है. वेरी इजी, समथिंग विच यू माइट बी ऑलरेडी अवेयर अबाउट. जैसे ही नंबर को तुमने कैनोनिकल फॉर्म में लिख लिया, अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि यहाँ पे कितने प्राइम कंपोनेंट्स हैं, तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2 प्राइम कंपोनेंट्स हैं.
एक प्राइम कंपोनेंट है 2 और दूसरा प्राइम कंपोनेंट है 3। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी क्या पावर है, अभी तुम बस ये देखो कि 24 कितने डिफरेंट प्राइम नंबर से बना हुआ है। तुम बोलोगे सर 24 दो प्राइम नंबर से बना हुआ है, एक प्राइम नंबर है 2 और दूसरा प्राइम नंबर है 3। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर अब मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो मुझे इन्हीं प्राइम कंपोनेंट की पावर्स को देखना है। तो देखो 2 की क्या पावर है यहाँ पे 3, तो जस्ट राइट 3 है। 3 की क्या पावर है, यू वुड से 1, राइट 1 है। पावर्स लिखने के बाद इन दोनों पावर्स में यू विल ऐड 1। आई टेल यू द रीजन कि हम 1 क्यों ऐड करते हैं, बट जो भी इन प्राइम कंपोनेंट्स की पावर है उसमें 1 ऐड करो एंड देन you will multiply them, and once you multiply this you get the answer for number of factors, and you can cross verify whether I'm getting the same answer or not. I was getting the same answer when I was solving this question using manual approach, and using canonical form also we are getting the same answer 8. I hope you have understood. So first step in the other approaches, you have to first maintain the number in the power of prime component, means you have to write number in canonical form, और जो भी उस प्राइम कंपोनेंट्स की पावर होंगी उन पे +1 करके यू हैव टू मल्टीप्लाई। So this is how we find out number of factors of a given number. So let me tell you the reason why we add 1 into the powers. It's very important. Now to discuss this, let me use this space. Yeah. तो अगर तुम्हें याद होगा जो कैनोनिकल फॉर्म था 24 का, वो ये था 2 to the power 3 into 3 to the power 1, 8 into 3 is 24, और हम उसमें 1 ऐड कर रहे थे। उसका रीजन ये है अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि 24 के फैक्टर्स बनाने के लिए 2 की कितनी पावर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो तुम यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि सर 3 पावर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट इन रियलिटी देयर आर 4 पावर्स ऑफ 2 who will participate in the making of factors of 24. कौन कौन सी हैं 4 पावर्स, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3. So somebody asks you how many parts of 2 are actually participating in making the factors of 24. These are 4 powers, 4 parts. Likewise, how many parts of 3 will participate? You will say sir 2 powers. One is 3 to the power 0 and the other is 3 to the power 1. So now to answer your question कि हम 1 क्यों ऐड कर रहे हैं पावर में, to consider these invisible powers, जो उन प्राइम कंपोनेंट्स की 0 पावर है हमको उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसीलिए तुम देखोगे कि 2 की कितनी पावर्स 4, 3 की कितनी पावर्स 2, and then in how many different ways these can be combined, use fundamental principle of counting, 4 into 2 and you get your answer is 8. So this is the reason why we add 1 and why then we multiply. ठीक है, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास 4 different trousers हैं and 2 different shirts हैं, how many different combinations can you make? तुम बोलोगे सर हर एक शर्ट के साथ मेरे पास 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, मेरे पास 4 ट्राउजर्स हैं, हर एक शर्ट के साथ मेरे पास 2 शर्ट्स हैं, तो उसके साथ भी कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बना सकता हूं 4. सो व्हेन यू काउंट एवरीथिंग यू गेट टू नो दिस इज 8. डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास 4 ट्राउजर्स हैं एंड आई हैव 2 शर्ट्स, so the number of ways in which I can combine the two is 8. 4 into 2, 8. Simple. Now let me show you something very interesting after understanding this participation concept. So as I said कि 24 के फैक्टर्स बनाने के लिए 2 की 4 पार्ट्स एंड 3 की 2 पार्ट्स पार्टिसिपेट करती हैं, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मेरे पास अलग अलग फैक्टर निकल के आते हैं। तो लेट मी शो यू कि ये होता भी है क्या। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 की पावर 0 इज 1, 3 टू द पावर 0 इज 1, एंड इफ यू मल्टीप्लाई यू गेट द फर्स्ट फैक्टर 1. So let us combine this. 2 to the power 0 and 3 to the power 1, it's going to be 3. 2 to the power 1 and 3 to the power 1, sorry 3 to the power 0. So 2 to the power 1 is 2, 3 to the power 0 is 1, you get the next factor 2. And likewise
2 to the power 1 into 3 to the power 1 will give you 6. Then make this combination 4. Then this combination 4 into 3 will give you 12. And then 8 into 1 will give you 8. And then 8 into 3 will give you the next factor. So this is what I was trying to tell you. कि 2 की 4 parts and 3 की 2 parts जब participate करती हैं together, they can make 8 different factors. और इसीलिए ये पावर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करता है. ठीक है. I hope the other approach, the logic behind canonical form is also clear now. Okay. So after understanding कि कैसे किसी प्राइम नंबर्स की पावर पार्टिसिपेट करती हैं और वहां से मेरे को डिफरेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स का आंसर मिलता है. Now let us learn how to find out even factors for a given number. For that, I want you to look at the same structure. यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 24 के फैक्टर्स मैन्युअली लिखे हुए हैं. ऐसा हमें करना नहीं है, लेकिन अभी बस बताने के लिए एक बार इसको देखो. तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तुम बोलोगे सर ये 8 है. ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है. Likewise, if I ask you to identify even factors, इन सब में से ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो इवन हैं, तुम बोलोगे सर ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6. How many even factors are here in the list? There are 6 even factors. 6 even factors जो कि even है नेचर में. How many of them are odd? The remaining 2. These 2. These are odd. These are 2. Interestingly, what will you note down? जब मैं इवन एंड ऑड फैक्टर्स को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर नंबर ऑफ फैक्टर्स के इक्विवेलेंट ही आना चाहिए. तो हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. ठीक है. तो अभी जो हमने किया ये तो हमने लिस्ट को देख के किया. अब एक बड़े नंबर के लिए मैं लिस्ट तो नहीं बनाने वाला हूं और इसीलिए हमने दूसरी अप्रोच में स्विच किया था. तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन डू द सेम थिंग यूजिंग द सेम कैनोनिकल फॉर्म, राइट? How we can find out number of even and odd factors using the same canonical form, and for that let me use this space. Okay, so if you try to recall, हमने 24 का canonical form कैसे लिखा था? 2 to the power 3 into 3 to the power 1. To find out number of factors, what we have learned कि जो भी पावर है उसमें प्लस 1 करो. 2 की पावर is 3, add 1. 3 की पावर is 1, add 1 to it, you get 2, and then multiply. And this way you would be able to get the answer of number of factors. But now if I want to just count those factors which are even in nature, जो कि even है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? See, it's very easy. For that you have to first look at the participation table. 2 की कितनी पावर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? 4. कौन कौन सी पावर्स हैं वो देखो एक बार. 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3. Likewise, let me write down the same thing for 3. There are 2 parts of 3 which will participate. अच्छा एक बात बताओ, कोई भी फैक्टर इवन है, कोई भी फैक्टर इवन है, ये मुझे कैसे पता लगता है? तुम बोलते हो सर कोई भी फैक्टर इवन है, ये कंफर्म करने के लिए मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ. तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आता है जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो उसका मतलब वो नंबर क्या है? इवन है. तो अगर बस मुझे वही फैक्टर्स काउंट करने हैं जो इवन है, आई नीड टू इंश्योर कि उस नंबर के पास कम से कम 2 का 1 पावर तो हो. 1 से कम नहीं चलेगा, कम से कम 1 तो होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सारे दे दो, लेकिन कम से कम मुझे 2 का 1 पावर तो देना ही पड़ेगा. ठीक है, मैं 2 की पावर 2 दूंगा वो तो और अच्छा है, बट द मिनिमम विच आई हैव टू प्रोवाइड इज 2 to the power 1. So for number of even factors, if I want to find number of even factors, and if I ask you how many parts of 2 should participate, you would say, sir, at least a power of 2 should participate. At least a power of 2, a minimum. The bare minimum condition is कम से कम 2 की 1 पावर तो participate करे. बट मेरे पास तो यहाँ पे 2 to the power 1 भी है, 2 to the power 2 भी है, 2 to the power 3 भी है, तो ये तीनों participate करेंगी. So how many parts of 2 will participate? To make even factors, you would say, sir, 3. Don't worry,
आई विल गिव यू अ शॉर्टकट, बट पहले तुम एक बार सोचो समझो कि हम कर क्या रहे। और जैसे ही मैंने ये इंश्योर किया, देखो इस चीज को समझना, जब भी मैं एक साइड से इवन नंबर भेजूंगा दूसरे साइड के लिए, देखो तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या समझ में आएगा, 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 0, 3 टू द पावर 0 इज 1, and if you multiply with 2 to the power 1 you get 2, the first even factor. Second even factor would be 2 to the power 1 into 3 to the power 1, 6. 2 to the power 2 into 3 to the power 0, you get 4 here. 2 to the power 2 into 3 to the power 1, you get 12. And then 2 to the power 3 into 3 to the power 0 is 8. And then 2 to the power 3 into 3 to the power 1, what you are getting? You are getting 24. So can you see that this is how I can make, how many, count them, 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर्स निकल के आए? 6 इवन फैक्टर्स, और यही अभी हमने देखा भी था। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि जब भी हम इवन फैक्टर्स निकालेंगे, जो भी चेंज हमें करना है वो 2 की पावर को लिखते हुए करना है। बाकी की पावर्स जैसे हम पहले लिख रहे थे 1 ऐड करके इनटू द पावर्स ऑफ प्राइम कंपोनेंट, वो एज इट इज रहेगा, यहां पे कोई चेंज नहीं करना है। एंड दिस इज हाउ यू वुड बी एबल टू गेट द सेम आंसर। डोंट वरी इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, अभी मैं दोबारा से दिखाऊंगा एक नेक्स्ट एग्जांपल पे, वहां पे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, बट फिलहाल के लिए बस अभी तुम सुनो। इफ आई वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, व्हाट आई विल डू, देखो बहुत इजी है। अगर एक फैक्टर को इवन बनाना था, द बेयर मिनिमम कंडीशन वाज कि उसके पास कम से कम 2 का एक पावर होना चाहिए। अब क्योंकि हम बिल्कुल ऑपोजिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये तीनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस ये पार्टिसिपेट करेगा। ओनली 1 पावर ऑफ 2 विल पार्टिसिपेट, दैट इज 2 टू द पावर 0। तो हाउ मेनी पावर्स ऑफ 2 विल पार्टिसिपेट? ओनली 1, एंड द रेस्ट थिंग विल रिमेन सेम। बाकी की पावर्स को हमको कुछ नहीं छेड़ना, वो एज इट इज जैसे हम पहले लिख रहे थे 1 ऐड करके, वो अभी भी हमें वैसे ही करना है। एंड दिस इज हाउ यूड बी एबल टू फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। So important takeaways for you is, if you analyze this, important takeaway would be कि जो भी चेंजेस हमें होते हुए दिखेंगे वो कहाँ दिखेंगे? जब हम 2 की पावर को लिखते हैं। देखो नंबर ऑफ फैक्टर के केस में 2 की पावर मैंने क्या लिखा? सिंपल, जो हम करते थे, हमने पावर पे 1 प्लस किया था। इवन फैक्टर के केस में, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ शॉर्टकट, इवन फैक्टर के केस में 2 की जो भी पावर तुम्हें दिखेगी वो तुमको एज इट इज लिख देनी है, ठीक है? और ऑड फैक्टर के केस में ये कभी चेंज नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी 1। यहां पे हमेशा एक ही पावर ऑफ 2 पार्टिसिपेट करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम किस नंबर के लिए ऑड फैक्टर्स निकाल रहे हो, और हमेशा यहां पे 1 ही लिखा जाएगा। तो मैं तुमको ये एनालाइज करवाना चाह रहा हूं कि जो चेंजेस तुमको होते हुए दिखेंगे वो तुमको 2 की पावर में, जब हम 2 की पावर लिखते हैं वो लिखते हुए दिखेंगे। बाकी की पावर्स जैसे हम करते थे +1, देखो हमने यहाँ पे भी 3 की पावर 1 थी +1 किया, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 थी +1 किया, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 थी +1 किया। हमको बाकियों से मतलब नहीं है, हमको बस 2 की पावर से मतलब है, ठीक है? लेट मी शो यू वन अनदर एग्जांपल एंड देन थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू। लेट्स पिक a bigger value this time, and then you'll understand, you know, why learning this approach is important for us. So let's say I want to find out the same three things for 1600. अब हमें 1600 के लिए number of factors, number of even factors and odd factors calculate करने। How would you calculate this? See, one way is, in order to write canonical form, I'll divide this number, you know, starting with the smallest prime number, that is 2. Then I'll keep on dividing this until I get 1, isn't it? So I'm doing it quickly. Hope you'll be able to understand. So this is going to be the prime factorization. So how many powers of 2? Count 1, 2, 3, 4, 5. 2 to the power 6. And how many powers of 5? 5 to the power 2. So this is one way of writing canonical form. Another way could have been, instead of dividing or finding prime factorization, what you could have done, an interesting thing to note down is कि जो नंबर है ना, इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 0 पे एंड कर रही हैं, और हमको पता होना चाहिए कि एक 0 बनता कैसे है। किसी भी नंबर में अगर 0 आता है तो कैसे आता है? जब भी एक 2 की पावर एक 5 की पावर से मल्टीप्लाई होती है तो एक 0 बनता है। इट मीन्स अगर कल को मुझे 0 को रिप्लेस करना है
तो मैं 0 को रिप्लेस कर सकता हूं बाय राइटिंग 2 to the power 1 into 5 to the power 1. So had I applied the same concept here, please try to understand. This is an optimization. इस 0 को हटाने के लिए I could have written 2 to the power 1 into 5 to the power 1. In this manner, I have removed one of the zeros. If I want to remove the next zero, again I have to write the same thing, 2 to the power 1 into 5 to the power 1. And now I'm just left with 16. You all know what is 16. 16 is absolute power of 2, 2 to the power 4. And now what I'll do, since we are maintaining number in canonical form, so I have to combine like powers. How many powers of 2? You would say 4 plus 1 5 plus 1 6, and then 5 to the power 2. So without doing this prime factorization, I could have written such numbers which are ending with zeros in canonical form. So if you're thinking क्या सर वहाँ पे भी मेरे पास ऐसे ही numbers आएंगे, so guys you need to understand कि एप्टीट्यूड के एग्जामिनेशन में वो तुमको कैलकुलेशन नहीं कराना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू चेक क्या तुमको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं. तो तुम्हारे पास जो नंबर वहां पे आएगा इट वुड बी इन दैट फॉर्म 2400, और नहीं भी आया तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है करने के लिए. ठीक है, ओके. तो आफ्टर गेटिंग द कैनोनिकल फॉर्म, लेट्स फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, number of even factors and odd factors. So how you find out number of factors? Very easy. Whatever are the powers of prime component, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या है 6, 6 plus 1 7, 5 to the power is 2, so add 1, you write 3. So you would say sir there are 21 numbers which can divide 1600 completely. Simple. Now while calculating number of even and odd, you have to be a little careful, and whatever changes we have to make, we have to make while writing power of 2. That's the only difference. ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर में हम जब 2 की पावर लिखेंगे, 2 की पावर क्या है 6, तो मैं हम यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे, बस ये तो ध्यान रखना है. ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट वुड रिमेन सेम. ये जो 3 था यहाँ पे एज इट इज 3 लिख दो. 3 की 5 की पावर क्या थी 2, 2 plus 1 वो ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So you get to know okay, there are 18 such numbers which can divide 1600 completely, which are even in nature. ऐसे 18 फैक्टर्स हैं जो कि इवन है, जो 1600 को completely डिवाइड कर सकते हैं. Likewise, if I ask you to find out number of odd factors, odd के केस में तो it's very easy, just write 1 here. You don't have to think much, just write 1, and then the remaining thing 5 to the power 2 plus 1 3, and you get okay. And then you can cross verify. इन दोनों का sum should be equals to the answer of number of factors. Yeah, so it could be a way to verify whether I'm getting the right answer or not. So in the same question, a very small concept, and then we'll close the session. In the same question, they could have asked you to find out number of prime components and number of prime factors and number of composite factors. It's very easy. कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे कितने प्राइम कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे 2 प्राइम कंपोनेंट्स हैं 2 and 5, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर 2. यानी कि इसके अलावा जो रह जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे कंपोजिट होंगे, ऐसा मुझे लगता है. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स थे 21, ये तो एज इट इज मैं काउंट कर सकता हूं. तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो 21 फैक्टर्स है ना, इसमें से 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम है, 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम है. तो अब तुम्हें लग सकता है इसका मतलब जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट हैं, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. दिस इज वेयर यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. ट्राई टू रिकॉल कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस 19 में ये जो 19 फैक्टर्स है ना, इसमें हमारे पास एक फैक्टर है. लेट मी शो इट हियर. जब भी मैं किसी नंबर का फैक्टर्स लिखता हूं तो 1 हमेशा आता है ना, और 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो ये जो 19 रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, मैंने 2 क्या रिमूव करे, मैंने 2 प्राइम फैक्टर्स रिमूव करे. तो 2 रिमूव करने के बाद भी, 2 प्राइम फैक्टर्स रिमूव करने के बाद भी इस 19 में एक ऐसा फैक्टर है which is neither prime nor composite, so I have to remove 1 from it, and then I get to know okay, number of composite factors are 18. I hope you were able to understand this. Let me show you the same thing in this example, और यहाँ पे हमको ये साफ साफ विजिबल भी होगा. तो अगर मैं सेम क्वेश्चन में तुमसे पूछता कि बताओ कि नंबर ऑफ प्राइम
फैक्टर्स कितने हैं? तो तुम बोलोगे सर प्राइम फैक्टर तो मुझे यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, एक है 2, एक है 3, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड लेट अस आल्सो वेरीफाई क्या 2 ही हैं? ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स देखो यहाँ पे, एक प्राइम फैक्टर 2 है, एक प्राइम फैक्टर 3 है, इसके अलावा और कोई प्राइम दिख रहा है तुम्हें नंबर? नहीं, 4, 6, 8, 12 एंड 24 दीज आर नॉट प्राइम, दीज आर ऑल कंपोजिट। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स का आंसर तो समझ में आ गया। Likewise, if I ask you now find out number of composite factors, so you may think कि सर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स थे वो टोटल 8 थे 24 के, इसमें से 8 में से 2 क्या है? 2 तो प्राइम है, तो क्या रिमेनिंग जो 6 हैं क्या वो सारे के सारे कंपोजिट हैं? द आंसर इज नो, यू हैव टू रिमूव वन फ्रॉम इट। वन क्या है? वन वो फैक्टर है ना जो कि प्राइम है ना कंपोजिट है, तो आंसर क्या होगा कंपोजिट का? 5। लेट अस काउंट, क्या सच में ये 5 है? क्या सच में कंपोजिट फैक्टर्स 5 है? लेट्स लुक एट द लिस्ट, 1, 2, 3, 4 एंड 5। I hope now you have understood how to find out number of prime and composite factors also. So in this video we have learned to find number of factors, even factors, odd factors, and also I have discussed prime and composite factors in detail. So this is all in this session. I hope you were able to understand what we have discussed. So let's close the session. If you have enjoyed this session, guys, please like, share, and subscribe. Thank you and have a nice day.